حضرت مولا علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت اپنے سبھی بیٹوں کو ورثے میں ملی، اور جو شجاعت جو بہادری حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کو ملی وہ شاید ہی کسی اور بیٹے کو ملی ہوگی۔ ویسے تو امام علی علیہ السلام کا ہر بیٹا علی ہے، لیکن صرف حضرت عباس علیہ السلام کو ہی ثانی حیدر کا لقب ملا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بہادری کے واقعات تو بہت تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غازی عباس علیہ السلام کا شیروں پر حملہ بتاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے شیروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ غازی عباس علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے چند اور واقعات بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عباس علیہ السلام ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن میں مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اس کو بچے کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا یہ سب اچھی طرح سے سیکھ لے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام غازی عباس علمدار کو بچپن میں ہی عرب کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ غازی عباس علمدار کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ غازی عباس علمدار کا شیروں کے ساتھ مقابلہ قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ خود امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے، حضرت عباس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے کہ شیر کسی انسان کی تلاش میں ہے، کہیں کسی انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ غازی عباس علیہ السلام اجازت لے کر جنگل میں اندر چلے گئے، اور جب امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا غازی عباس علمدار شیروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے، اے فرشتوں کے شیر۔ اس کے بعد شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کمرے بنی ہاشم، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں اگر کوئی پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ آسان ہے، جہاں سارے پڑھے لکھے ہو اور وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو جس کے گھر میں نبوت کا سورج ہو، جس کے گھر میں امامت کا چاند، جس میں حسن کا چاند ہو، جس میں حسین جیسا کریمی کا چاند ہو، وہاں اپنے آپ کو کمرے بنی ہاشم کہلانا صرف غازی عباس علمدار کی سیرت ہے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امام علی علیہ السلام کے شاگرد جناب حسن مجتبی علیہ السلام کے شاگرد حضرت غازی عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صلح کو ترجیح دی، پر اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام غازی عباس علیہ السلام تھا، جنگ صفین میں جس نے فرات پر قبضہ کر فرات خالی کرایا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دوڑے تو سامنے 300 بندوں نے اکٹھے تیر چھوڑے۔ 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے، جب تیروں کی بوچھاڑ دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام تیزی سے گھوڑے کی زین پر آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے پاس سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور حضرت امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تم میں کوئی فرق
नहीं। आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी गाजी अब्बास अलमदार और इमाम अली अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। और उसी गाजी अब्बास अलमदार ने जब मक्का छोड़ा तो काबे की छत पर खड़े होकर ये खुतबा कहा। उसी खुतबे से आज तक यजीदी लरसते हैं। गाजी अब्बास अलमदार ने काबे की छत पर ये खुतबा दिया था। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये सिर्फ घर था, इसे किबला किया हमने। गाजी अब्बास अलमदार ने एक नजर उन हाजियों की तरफ भी की जो के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल के इरादे से मक्का में आए थे। उनकी तरफ देखकर गाजी अब्बास अलमदार ने फरमाया, ए काफिरो, तुम क्या समझते हो कि तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका है? अगर वो चाहें तो काबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ जाए। जो खुतबे की धार से लड़े उसे अब्बास कहते हैं। जब सफीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास अलमदार को इजाजत दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था कि बाबा मैं जाऊंगा मगर इजाजत आपकी हो और मर्जी मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी दी। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़े। गाजी अब्बास अलमदार लड़कर वापस आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे सहाबियों ने कहा, मरहबा अब्बास, आज अली की जवानी याद आ गई, आज अली की तलवार याद आ गई, आज अली का खैबर याद आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दाद लेने के लिए गाजी अब्बास अलमदार आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। गाजी अब्बास अलमदार ने कहा, हर कोई दाद दे रहा है और मेरा आका ही मुझे दाद न दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदान में जाने से पहले आपने खुद असूल बना दिया। आपने फरमाया, लड़ूंगा लेकिन हुसैन की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। गाजी अब्बास अलमदार ने रो के फरमाया, मौला मैं कब पहले आपकी मर्जी के खिलाफ लड़ा हूँ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास वादा कर, अब जब भी जिंदगी में लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफा की थी मेरे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने सैयदों के साथ, इतनी मोहब्बत थी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियों की हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ कि जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में आए इतना जमीन पर नहीं चले थे जितना बीबियों की गोद में रहे। इतना प्यार था सैयदादियों का हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियों ने हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को उठाने का वक्त मुकर्रर किया हुआ था। मगरिब तक अब्बास अलैहिस्सलाम को आप उठाएंगी, जोरैन तक अब्बास अलैहिस्सलाम मेरे पास रहेगा। इतना जमीन पर नहीं चला था जितना सैयदादियों के हाथ में रहा था। हर वक्त कभी बड़ी शहजादी उठाती, कभी छोटी शहजादी उठाती। एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बीबियों के सैन से निकलकर माँ के हुजरे में आए। सामने बैठी थी वफा सिखाने वाली गाजी अब्बास अलमदार को देखा। गाजी अब्बास अलमदार ने दोनों हाथ माथे पे रखे और सलाम किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा सलाम। बीबी ने फरमाया, अब्बास कहाँ से आ रहे हो? हजरत अब्बास अलमदार ने फरमाया, माँ बहनों के घर से। बीबी ने फरमाया, अब्बास मेरे सामने खड़ा हो, मेरी आंखों में आंखें डाल। बीबी ने फरमाया, अब्बास पहले आप छोटे थे इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अब्बास वो तेरी बहनें नहीं हैं, वो तेरी आकाजादियाँ हैं। गाजी अब्बास अलमदार रो कर कहने लगे, अम्मा क्या मैं उनका भाई नहीं हूँ? बीबी ने कहा, नहीं, आप उनकी कनीज के बेटे हो। आप सारा दिन उनके घर रहते हैं, वो आपको उठाती हैं, तुझे पालती हैं। आपको पता है वो अपने बाबा के सामने भी कभी नहीं गई, वो अपने भाइयों से भी पर्दा करती हैं। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़कर फरमाया, अम्मा माफ कर दे, आज के बाद अब्बास नहीं जाएंगे। रात गुजर गई, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए। सुबह शहजादी की आवाज आई, कुलसूम उठो, देख अब्बास खैर से है। पूरी रात गुजर गई, अब्बास नहीं आए। बीबी अपने घर से निकलकर जब उम्मुल बनीन के घर आई, सहन में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। बीबी दरवाजे पर रुक गई और वहाँ से आवाज दी, अब्बास। अब्बास अलैहिस्सलाम पहले शहजादी की तरफ दौड़े और फिर माँ की बात याद आ गई। करीब जाकर छोटे छोटे हाथ जोड़े, सर
सर झुकाकर कहता है, जी आकाज़ादी। बीबी ने फरमाया, अब्बास आप तो मुझे बहन कहते थे। गाजी अब्बास अलमदार ने फरमाया, मुझे नहीं पता था कि मैं कनीस का बेटा हूँ। जो कहता रहा वो माफ कर दें, आज के बाद नहीं कहूँगा। बीबी वहाँ से लौट गई। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और आप दौड़ते हुए आपके पास आए। बात करते करते हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आज मेरे बुलाने पर आप इतनी जल्दी आ गए। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आवाज़ दूंगा और आप नहीं आएंगे। जैसे ही ये आवाज़ गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 3 रातों तक नहीं सोए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में जाते तो गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम उनके पीछे मस्जिद में आते थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घर आते तो गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम पीछे पीछे रहते थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हुजरे में चले जाते तो गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बाहर बैठ जाते। आंखें खुली हुई 3 रातें जागते रहे। बीबी फिजा देखती रही। बीबी फिजा ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, 3 रातें हो गई हैं, मैं रात को उठ उठ के देखती रहती हूँ। अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे के बाहर बैठ जाते हैं और ये सोते क्यों नहीं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बुलाओ मेरे अब्बास को। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आए, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद, अदब से हाथ जोड़कर फरमाया, जी बीबी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब्बास सर उठाओ, आंखें खोलो। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों की सुर्खी देखी और फरमाया, अब्बास सोए क्यों नहीं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आने लगे और फरमाया, उन्होंने कहा था कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आओगे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की कलाई पकड़ी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाकर फरमाया, भाई क्या फरमाया है आपने मेरे अब्बास को कि वो 3 रातों से सोए नहीं हैं। मेरा अब्बास जागा हुआ है। वो क्या बात है जो मेरे अब्बास को जगाए हुए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास क्यों नहीं सोए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फरमाया था कि मैं बुलाऊंगा और तुम नहीं आओगे। ऐसा हो सकता है कि आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के कंधे को चूम कर फरमाया, अब्बास तब आप जिंदा ना होंगे। अब्बास मदीना ना होगा, जंगल होगा, हुसैन तन्हा होगा। इतना मान था सैयदजादों का अब्बास अलैहिस्सलाम पर। 10 मुहर्रम के दिन जब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम मक्तल में जा रहे थे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गाजी अब्बास अलमदार से फरमाया, अब्बास सच कहा था मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी क्या कहा था। बीबी ने रो कर फरमाया, बाबा ने फरमाया था 21 रमजान जब मैं आखिरी बार बाबा से मिलने गई थी तो मुझे कहा था, ज़ैनब अपने हाथों से चादर हटाओ। मैंने हटाई तो मेरी कलाइयाँ चूमने लगे। मैंने कहा, बाबा आज से पहले तो कभी मेरी कलाइयाँ नहीं चूमी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी बार चूम रहा हूँ, इन कलाइयों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। ये जुमले कहकर बाबा ने आंखें बंद कर ली। लेकिन अब्बास मैं तेरी जवानी देखती, मैं तेरा कद देखती, मैं सोचती थी बाबा कहता था रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे रस्सियाँ कौन पहनाएगा। आज तुझे मक्तल में जाते वक्त देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब ज़ैनब कैद हो जाएगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत, बहादुरी और वफादारी पर अगर बात करें तो दुनिया में मौजूद कागज और कलम कम पड़ जाएंगे, लेकिन शान गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम कम ना होगी। Oh